Sir, you have been conducting CSS mock interviews for the past 25 years now. What are your major findings when it comes to communication skills of the candidates? और इसमें some of the problems जो 70 to 80% जो problems है ना, they relate to communication skills. The first problem is monotone. They are monotonous speech. Number one. Number two, voice. Voice is an asset. Sound box is an asset. They do not know how to use their sound. उससे एनर्जी लेवल क्या है, हैप्पीनेस क्या है, उससे सैडनेस कैसे इंडिकेट हो रही है वॉइस के साथ, एक्साइटमेंट शो हो रही है, आपने कहीं स्ट्रेस देना है, वो आपने किसी वर्ड को यू डोंट नो, कहीं आपने आवाज को उठाना है, पिच राइज करनी है, कहीं आपने पिच को डाउन करना है, तो कहीं आपने पॉज करना है, कहीं आपने स्ट्रेस देना है, तो ये ऑल दीज थिंग्स राइट दे आर द ब्यूटी ऑफ द वॉइस. Dozens of ways to use your voice only. Right. That is point number two, monotony, number one. Number two, voice. Number three, the problem of accent. Now this is again a major finding. अब मिसाल के तौर पे many students they say government. They do not know how to pronunciate government. और ये turn off है बहुत बड़ा. बहुत ज़्यादा. Similarly, they can't say stress. They would break up S and T, stress. Similarly, they are speaking in English and they are saying Israel instead of Israel. They are saying Palestine instead of Palestine. So these kind of problems, accent problem is very common. The next is fluency. Many students, they don't have fluency in their, and the rhythm in their talk. And they take too many pauses. एक ही सेंटेंस आपने 4 पॉजेस ले लिए हैं, आपने बेड़ा गर्क कर दिया बोलने का, तो यू शुड नो कि भी मुझे एक सेंटेंस जो है आई हैव टू से विदाउट अ पॉज. तो और फिर सिमिलरली अगेन कम्युनिकेशन स्किल्स में वी जज वेदर यू आर पैसिव स्पीकर, वेदर यू आर असर्टिव स्पीकर और वेदर यू आर एग्रेसिव स्पीकर. एंड व्हाट वी वांट यू टू बी असर्टिव, neither to be passive nor to be aggressive. राइट. सर तीसरा ये बताएं कि ये जो आपने बहुत लोगों के पास नॉलेज होती है, they are very knowledgeable but they don't know how to present that knowledge. So can you tell us कि किस तरह से उसको ऑर्गेनाइज करके बताना चाहिए, since टाइम भी कम होता है, तो कैसे, what is the best way to go about? Yes, this is again a wonderful question. Knowledge, how to judge the knowledge. Now we see so many things, right, in student. First of all, we see how he takes start. सवाल का उसने start कैसे लिया है. To what extent he is relevant. Whether the answer is focused or whether he is dragging the question too much or whether he is going into history or what kind of vocabulary he is using. Now, I will give the example. For example, you are asking, just give the current status of Indo-Pak relations. Now, one student say relations are not good. The other says relations are hostile. The third one says at the moment they are pretty low. Now तीनों का different convey हो रहा है. एक बंदा कह रहा है not good, वो कह रहा है, तो एक sentence से you are judging कि how you are presenting your knowledge, how you are starting. Okay. Then relevance. For example, you again ask him, what is the current status of Pak-US relations? And again, the student, he is not smart enough कि भी मुझे एक लाइनर में या एक सेंटेंस में I should be able to depict today's situation. वो सोचेगा, उसको 3, 4, 5, 6 सेंटेंसेस बनाएगा हिस्ट्री और रिलेट करता करता, फिर वो करंट पे पता नहीं बेचारा आता है कि नहीं आता. तो दैट इज अगेन कि हाउ यू फोकस on the question. Then some students again communication skill भी उसमें है, कई लोग जो अच्छी होती है और फिर और नॉलेज में चूंकि फोकस नहीं होते हैं तो दे ड्रैग एंड गिव लॉन्ग एंड वाइंडेड आंसर्स व्हिच आर नॉट रिक्वायर्ड. इरिटेट हो जाता है पैनल. You should know when to stop, when to begin, when to stop. You are not there to preach us. Right. You are not there to give a speech on something that you keep speaking and you don't know how to stop. That is a very major problem. Then similarly, vocabulary. What kind of vocabulary you use?
मतलब एक बंदा, जिस तरह मैंने अभी कहा कि रिलेशंस आर नॉट गुड, तो वही जस्ट शोइंग हिज वोकैबुलरी। एक कहता है जी रिलेशंस दे आर हॉस्टाइल, ही इज शोइंग हिज वोकैबुलरी। एक कहता है जी पाक यूएस रिलेशंस दे आर ट्रांसैक्शनल, तो इसका मतलब है कि दिस इज अ वंडरफुल वर्ड, वो एक अच्छी वोकैबुलरी यूज कर रहा है। एक बंदा कहता है जी रिलेशंस दे आर कॉम्प्लेक्स, तो इसके आपका हर एक वर्ड से वोकैबुलरी का लेवल भी जज हो जाता है कि आपने। देन अगेन स्टांस, व्हाट स्टांस यू टेक। फॉर एग्जांपल, आपसे पूछा गया है कि वेदर द न्यूक्लियर वेपन्स आर ब्लेसिंग और कर्स। नाउ हियर यू हैव टू टेक अ स्टांस, नंबर वन। तो हाउ टू टेक अ स्टांस? नंबर वन, you say yes or no, or whether blessing or curse, number one, and then you give the arguments to justify your stance. और arguments again आपने chronologically और importance के हवाले से, organization of ideas आपने कैसे करना है कि जी these are the arguments, number one, number two, number three, number four, क्लैरिटी के साथ, सीक्वेंस के साथ और कन्विंसिंग तरीके के साथ। तो ये चीज़ें हम देखते हैं कि वो स्टांस लेने में उनको प्रॉब्लम होती है, एंड देन दे हैव द प्रॉब्लम दैट दे कांट कन्विंस, दे डोंट हैव द आर्गुमेंट, कोजेंट आर्गुमेंट टू प्रूव देयर स्टांस। तो ये कुछ फाइंडिंग्स है जो मैंने, मतलब पॉजिटिव फाइंडिंग्स तो मैं अभी जो है मैं थोड़ा सा, ये जो फाइंडिंग्स है ना, ये चूंकि ज्यादातर लोगों के साथ होती है, तो आई वुड देयरफॉर like to share these kind of problems. So based on these findings, can you give us a good piece of advice to overcome these problems? और जो अभी लोग इंटरव्यू में पेयर कर रहे हैं, उनको आप क्या कुछ फाइनल टिप्स और एडवाइस देंगे ताकि वो थैंक यू। पहली बात तो ये है कि if you have been given some recommendation about your communication skill, you have to work on it. You have to rehearse. Similarly, how you handle your knowledge, again you have to rehearse. देखिए, एक एथलीट है, छोटी सी मिसाल देता हूँ, 100 मीटर्स की रेस 10 सेकंड की होती है। वो एथलीट 10 साल रिहर्सल करता है कि नहीं? नाउ व्हेन यू आर गिवन एन ऑब्जर्वेशन, तो उस पे काम करने, अब आपका काम है उस पे काम करें, उस पे प्रैक्टिस करें, रिहर्स करें, ताकि आप उसको इम्प्रूव करें, मॉडिफाई करें। और जो लोग करते हैं प्रैक्टिस, वो इम्प्रूव करते हैं। तो यू नीड प्रैक्टिस। इवन आप बड़े बड़े लोग जो हैं, बड़े बड़े लीडर्स हैं, मैं उनको कोट कर रहा हूँ यहाँ पे, बराक ओबामा, इसी तरह विंस्टन चर्चिल, जो इतने बड़े लीडर्स थे, इतने अच्छे ओरेटर्स थे, स्पीकर्स थे, दे यूज्ड टू रिहर्स इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो अब इससे बड़ी मैं क्या मिसाल दूँ कि उनको ज़रूरत थी कि वो प्रैक्टिस करें। तो ये प्रैक्टिस में आप अपने आप को वीडियो करें, लिसन करें, अपने वॉइस रिकॉर्डिंग करें, लिसन करें, इम्प्रूव करें, फिर देखें। सो यू शुड नो दैट यू आर इम्प्रूविंग इंक्रीमेंटली। एंड सिमिलरली आपने फिर जहाँ पे जो ये जो इम्प्रूवमेंट्स हैं, ये इंटरव्यू देने का तो फ़ायदा तब है मौके आप इन एरियाज पे काम करें। और अगर आप काम नहीं करना और इंटरव्यू देते चले जाना, दैट्स ऑफ नो यूज। तो और फाइनली कि देखें, एक तो स्टूडेंट को कहें कि बी योरसेल्फ, व्हाटएवर यू आर, you should not try to fabricate yourself. Number 2, be prepared for unpredictabilities. ये इम्तिहान predictabilities का नहीं है। आपसे कोई भी unexpected question हो सकता है, you should be mentally prepared. आप ये नहीं कह सकते कि जी मैं तो ये तैयार होकर गया था, मैं तो ये तो ये इसको भूल जाएं। ये unpredictability है। Thirdly, students they again make a mistake, they jump to two things, कि अभी सवाल पूरा ही हमारे मुंह में होता है and they start responding to the question, they jump to the question answer, and secondly they jump to the conclusion. ये दोनों बहुत बड़ी ड्रॉबैक्स हैं, इनको अवॉइड करना चाहिए। तो प्रैक्टिस दोनों, नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए, नॉलेज को फोकस रखने के लिए, टू द पॉइंट रखने के लिए, अच्छा स्टार्ट लेने के लिए, और वोकैबुलरी अच्छी देने के लिए, और कम्युनिकेशन की जो मैंने फाइंडिंग्स बताई हैं, आपने वॉइस को कैसे आपने, और इस तरह फ्लुएंसी को, एक्सेंट को, सारी चीज़ों को, तो यू शुड प्रैक्टिस। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल एडवाइस।